Assalamualaikum everyone. This is Umar from Dastan. I will cordially welcome you to yet another exciting episode जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एक नई बुक के बारे में दैट इज़ प्लेयर एआई। काफ़ी इस बुक को लेके शोर मचा। वर्ल्ड कप भी था, पाकिस्तान की टीम की बड़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस भी थी। So this book is kind of centered somewhere around World Cup and artificial intelligence. Magar, how does two things relate to each other? What was the story behind it? Who was the author of this interesting story? Who came up with this plot? तो आज हम इस particular topic के बारे में बात करेंगे. So today we have one of our really important guests named Umar Iftikhar. Let me just add him into the call. So Umar is with us. I think this probably is his fifth book with us, if I'm not mistaken. Apart from that, he has more than 1,000 articles to his name. He is one of an eminent pillar of our, I would say, Pakistan's journalism industry. Welcome, Umar, to this call, and really excited to have you here. Would love to hear a little bit about your thoughts of how does the idea of Player AI came into being. Assalamualaikum Umar. Thank you so much for hosting this session, and thank you Dastan. First of all, thank you to you and your co-founders for establishing Dastan many years ago, so that the voices of the authors could be heard across Pakistan and across the world. So the concept for this Player AI came last year. I was watching Terminator 2, I think, for the millionth time. और मैंने सोचा कि अगर Terminator 2 पाकिस्तान में आए, वो जो एंड्रॉयड है, तो क्या होगा। तो मैंने फिर सोचा कि भाई मैं कुछ लिखता हूँ इसके बारे में. So I started thinking about the themes and the topics. तो मुझे क्रिकेट इतना स्ट्राइकिंग लगा क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बाकी ममालिक में जो है हम उसको बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं, फॉलो करते हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड्रॉयड, ह्यूमनॉइड टाइप एंड्रॉयड्स इनटू क्रिकेट. तो वहाँ से जो है वो इस स्टोरी का, इस कहानी का जन्म होता है. So that's really interesting. Thank you so much, Umar, for sharing this synopsis. So एक मेरे जहन में बड़ा ख्याल आ रहा था और हमने आई थिंक इस इवेंट की, इस पॉडकास्ट के बायो में भी लिखा कि डू यू थिंक पाकिस्तान एक्चुअली इसलिए हार गया था कि एआई भेज दिए थे जो मॉल फंक्शन करके थे, या बाकी सही टीम गई थी? पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो पिछले 5-6 सालों में उसने, बल्कि 5-6 क्या 92 से जो हम एक मवाजना करते हैं, तो या तो हम बेहतरीन खेलते हैं या हम बिल्कुल ही खराब खेलते हैं. मतलब बीच का तो कुछ है ही नहीं. या तो 152 विदाउट एनी लॉस, या फिर बिल्कुल खत्म. तो मुझे भी कुछ लोगों ने, जो मेरे पुराने रीडर्स, उन्होंने मैसेज किया. उन्होंने कहा कि सर आपको लगता है कि क्या इन लोगों ने आपकी बात को सीरियसली ले लिया, उन्होंने कोई मैथ फंक्शन एंड्रॉयड भेज दिया है. तो आई मीन ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब मैंने पाकिस्तान की टीम को इसलिए लिया क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारी टीम है और उसको हमसे अच्छा कोई और नहीं जानता. और दूसरा ये कि उसमें एक थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ ह्यूमर को ऐड करना, उसमें जो है थोड़ा सा सैटायर को यूज़ करना, उसमें जो एक तंज और मज़ा को लाना, तो वो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक्सेप्टेबल है वो, क्योंकि हम वैसे ही इतनी मीम्स बनाते हैं पाकिस्तान टीम के बारे में. Okay. Another thing that I wanted to ask was when we talk about androids and AI, I've also seen that you were quite active in the science fiction niche for quite a while now. You also, I think, started a platform. So if you can share a little bit about that, does this book have something to do with that platform, or was that a separate idea and this was a separate experiment? Okay, so let me explain the entire journey of mine into the science fiction genre. I think it began, something clicked in my mind in 1993 when I first watched Back to the Future Part 1.
और उस वक्त से मैं बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, मुझे फैसिनेशन होती थी साइंस फिक्शन से, इंक्लूडिंग ऑल द थीम्स, एलियंस ऑन अदर प्लैनेट्स, एलियंस कमिंग ऑन अर्थ, टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, उसके बाद बाकी जो टर्मिनेटर हो गया, स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक एंड सो ऑन. So in 2010, I participated in NaNoWriMo, which is National Novel Writing Month. It's a US-based creative writing project in which you have to complete a 50,000 word story during the month of November. और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है. So I was one of the winners from Pakistan in 2010. और उसमें जो आइडिया मैंने पेश किया था, जो मैंने लिखा था, after almost 10 years of waiting and fighting with my writer's block and everything else that a writer has to face. In 2020, I launched that literary work by the name of Divided Species. That was in fact the first ever science fiction novel that was set in Karachi, written by a Pakistani. So उस वहाँ से जब मेरा सिलसिला शुरू हुआ into science fiction, so I started this platform called Sci-Fiers, SCIFIERS.org, Sci-Fiers, and my ambition and my aim and my goal is to turn that website into a community of science fiction enthusiasts, especially from Pakistan, but also incorporating people from other countries. और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मेंटोर डॉक्टर काजी तौसीफुद्दीन साहब का, जिन्होंने मुझे मदद की कि मैं इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखूँ. और फिर मैंने सोचा कि मैंने साइंस फिक्शन पे तो एक नॉवल लिख लिया है विच इज़ अराउंड 65,000 वर्ड्स, तो व्हाई नॉट डू समथिंग एल्स within the genre of science fiction. So I thought कि science fiction sports story कभी पाकिस्तान में नहीं आई है. So Player AI was a science fiction sports story that I conceived, and it got published in the mid of May by Dastan. जी. Yes, बिल्कुल. I remember that thing. So Player AI के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं. So I do understand that you had this idea of mixing cricket and AI into it. So how does the plot start? So is it something related to Pakistan? Does the journey starts within Pakistan, या ये again sci-fi की तरह वो न्यूयॉर्क में ही सारे aliens का attack है और वहीं से कुछ बन के आया है? So इसमें I'm not going to explain much क्योंकि वो spoiler हो जाएगा. I want the readers to read and experience it. और मैं जो मैंने हमारे जो प्रेस रिलीज में और दास्तान की वेबसाइट पे और जो मैंने सोशल मीडिया पे इसके ब्लर्ब्स और सिनॉप्सिस शेयर किए, उसी का मैं एक समराइज फॉर्म आपसे शेयर करता हूँ. सो द स्टोरी बिगिंस a few weeks before the start of the T20 World Cup. अच्छा, इसमें मैंने कहीं पर भी डेट्स नहीं लिखी हैं. So if a reader reads this book 10 years down the road, तो उसको लगेगा कि हो सकता है अगले वर्ल्ड कप की बात हो रही हो. तो मैंने इसको टाइमलेस रखा है. So just a couple of months before the start of the T20 World Cup, हमारे जो कैप्टन है T20 क्रिकेट के, whoever he may be, उनको एक इलनेस हो जाती है and he is unable to carry out his daily activities. और डॉक्टर्स ने कहा होता है कि भाई आपको जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीने का बेड रेस्ट चाहिए. अब वो तो चले गए बेड पर और उनका अच्छा एक ख्याल रखा जा रहा है. Now the problem is कि इसमें जो गवर्निंग बॉडी है जो मैंने लिखी है वो है पाकिस्तान क्रिकेट अलायंस, PCA, which is a fictional cricketing governing body for cricket in Pakistan, PCA. तो वो कहते हैं कि भाई हमारा कैप्टन तो साइडलाइन हो गया है, अब हमारे पास दो मसले हैं. नंबर 1, हमें मीडिया को टैकल करना है कि भाई मीडिया फ्रेंडली हो जाएगा कि कैप्टन जो है वो नहीं खेल रहा तो कौन होगा, और फिर बहुत सारी जो है वहाँ पर कयास आराइयाँ होंगी, स्पेकुलेशन होगी. और दूसरा जो है वो जो फैंस हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो कहेंगे भाई कैप्टन नहीं है तो क्या होगा हमारी टीम का. So to keep all the speculations, doubts and fears at bay, PCA जो है वो एक सीक्रेट मीटिंग बुलाता है अपने हेडक्वार्टर्स में और कहता है कि भाई हम एक एंड्रॉयड, एक ह्यूमनॉइड एंड्रॉयड का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि उसकी एक्सटर्नल फीचर्स बिल्कुल इंसान जैसी हैं. आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक रोबोट है अंदर से, जो कि टर्मिनेटर का जो कॉन्सेप्ट था.
सो इनिशियली उनको रोल आउट करना था प्रोग्राम एज टू यूज दैट ह्यूमनॉइड बीइंग as a 12th man or someone who could help the players during their practice sessions के बैट्समैन बन जाए या फील्डर बन जाए या फिर बॉलर बन जाए. लेकिन अब मसला ये है कि चूंकि कैप्टन इज आउट ऑफ द पिक्चर एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट द कैप्टन इज प्लेइंग, तो वो उस एंड्रॉयड को उस कैप्टन का रूप देते हैं और देन ही बिकम्स पार्ट ऑफ द टीम विदाउट एनीवन नोइंग के अंदर क्या माजरा चल रहा है. ओनली 10 to 12 पीपल फ्रॉम द मैनेजमेंट नो अबाउट दिस सीक्रेट प्लॉट. लेकिन जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि मैंने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जहाँ पे फोकस में रखा है, वहाँ पर मैंने मशीन लर्निंग पे भी अहमियत दी है कि हाउ अ सेंटिएंट बीइंग, हाउ एन एंड्रॉयड could evolve into a sentient being having emotions and having the audacity to question humans actions, जो कि इसमें मैंने मेंशन किया है. और वहीं से फिर ट्विस्ट शुरू होता है कहानी का. So this is exciting. I think is somewhat this theme के ऊपर I did see one movie on Netflix as well. I think I'm not quite sure about the name of the movie, but उसमें कुछ इस तरह से वो करते हैं कि there is this bot जो कि उसकी कोई I think कोई इसकी aunt होती है who is in US again, वो सारा plot US में even आते हैं. Then the bot is sent as a helper. The techie is unable to understand कि वो bot है और वो उसके साथ प्यार में लव में चला जाता है, एंड देन व्हेन ही रियलाइजेस अच्छा ये तो बॉट है, देन इट बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग. और फिर वो बॉट जब इंडियन एनवायरनमेंट में आती है एंड देन व्हेन शी एनकाउंटर्स द टॉक्सिक कल्चर शी बिकम्स रियली रियली अ न्यू वर्जन ऑफ इटसेल्फ. जैसे आपने मेंशन किया कि वो मशीन लर्निंग के थ्रू एक अलग ही उसका वो रिस्पॉन्स आ जाता है. आई थिंक इस थीम को थोड़ा सा एवेंजर्स में भी बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने पोर्ट्रे किया था, वेयर आई थिंक वन ऑफ देयर हीरो, वन ऑफ देयर विलन्स हु वेंट ऑनलाइन और वो जाके वो करता है सारा इंटरनेट को स्कैन करता है एंड देन इन अ मिनट ही सेज द ह्यूमन पॉपुलेशन नीड्स टू गो. आई एम नॉट वो क्वाइट मेरे ख्याल श्योर. से अल्ट्रॉन, आप शायद अल्ट्रॉन की बात कर रहे हो. Yes. So I've seen some really interesting things, but I was again hoping कि हमारा पाकिस्तानी response कब आएगा. So Player AI जब आपने mention किया कि it's coming out, so I became really excited about it कि this is really a new touch. क्योंकि हम बाकी Yeah. चीजें पढ़ते रहते हैं लेकिन जब तक वो आपके लोकल कैरेक्टर्स ना हो, आपका कुछ उसके साथ कनेक्शन ना हो, it really becomes more of a boring thing. Because I've seen Marvel movies for quite a while and I've seen कि mostly जो आजकल जो भी recent releases भी आए हैं, they are just drag. Like you after like 10-15 minutes you're like यार ये क्या हो रहा है? Like it's just the same thing over again. But when we talk about a local touch into a particular theme and especially एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करना, उसके ऊपर आई वुड रियली लाइक टू कमेंड यू. क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि मोस्टली जो यूथ होती है दे फॉलो मेजर ट्रेंड्स जो आ रहे होते हैं. So unless or until they are able to find a local role model or a local resource which kind of talks about that thing, which gives a new perspective, which gives them the power to be the narrators of their own story, वो जब तक उनको ना मिले they keep searching for identity. So really great effort in that, but happy to listen to your thoughts if you want to add anything around the identity thing. हाँ, इसमें ये है कि आपने सही कहा कि एवेंजर्स के जो रिसेंट जो उनके मूवीज हैं उसमें हमें एक आइडिया हो जाता है कि अब क्या हो सकता है. तो वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो यहाँ पे नहीं है. फिर दूसरा ये कि आपको याद होगा इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज के नाम से कहानियाँ आती थी और वो बेसिकली पॉइंट है जब मैंने कहा कि अच्छा पाकिस्तान में इस तरह की कहानियाँ हैं तो हम भी लिख सकते हैं. लेकिन उसके बाद वो फिजल आउट हो गया. पाकिस्तान में एज सच कोई जो है वो कोई उसमें पेशरफ नहीं हुई. सो आई थिंक पाकिस्तानी कंटेंट और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है जब हम ऐसे जॉनरा की बात करते हैं जिसमें पहले एज सच किताबें नहीं लिखी गई. पाकिस्तान में साइंस फिक्शन में लिखी हैं इन्होंने उस्मान तनवीर हैं और सिद्रा एफ और इसके अलावा
एक फराज साहब हैं जिन्होंने एक लिखा था, मैं नाम भूल गया उसका। तो ये राइटर है, लेकिन आई थिंक इन much has to be done to ensure that science fiction is read and evolves into something else. ट्रूली आई एग्री टू दैट, क्योंकि इसमें मैंने जो चीज़ देखी है वो ये है कि हमारे पास व्हेन वी टॉक अबाउट आवर लोकल फोक स्टोरीज या जो हमारे इनिशियल राइटर्स, आई स्टिल रिमेंबर हमारे बचपन के अंदर वो उमरू यार की आया करती थी, एंड दैट वाज अ हाँ, बिट ऑफ फैंटेसी काइंड ऑफ थिंग, बट अगेन इट yeah. वाज वर्थ रीडिंग। एंड अगेन वो आई रिमेंबर वो अली बाबा और 40 चोर वहां से स्टार्ट होती थी, एंड देन one after another there were quite an interesting stories in our past। मगर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समवट आई हैव सीन कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, दे आर क्वाइट लॉस्ट अबाउट आवर early heritage or the early assets that we had. They really have no idea about the real stories that we used to read in our childhood. और आजकल all they just कंज्यूम द सोशल मीडिया, और उसके ऊपर टिकटॉक पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर जो चल रहे हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग दैट ब्लाइंडली। बट आई हैवंट सीन देम इनक्विजिटिव, या वो जो उनके अंदर होती है ना कि क्यूरोसिटी होती है कि यार व्हाट्स आवर हाँ, एसेट, व्हाट्स आवर कल्चर, व्हाट्स आवर हेरिटेज, व्हाट्स आवर स्टोरी व्हिच वी कैन गो एंड टेल द वर्ल्ड, वो चीज़ मुझे अभी तक कहीं नजर नहीं आई। So when I see some new stuff coming up, I really believe and I really hope that this actually is able to kind of like inspire। अगर हम कहते हैं कि हमने जितने मर्जी एफर्ट कर लिया, अगर हमने एक बंदा भी इंस्पायर कर दिया, तो आई थिंक that's a job well done। We are not aiming to inspire हम्म, millions, all we need is just one person, because that one person I know for sure is going to go and tell 10 other persons, and again the ripple effect, it comes out after time। और इस चीज को मैं इसलिए भी देखता हूँ कि हम वी हैव सीन दैट जनरली द बुक रीडिंग कल्चर या जो इस तरह का हमारा लिटरेरी सीन है, थोड़ा सा जरा हमेशा डिक्लाइन की तरफ रहा है ड्यू टू बैड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। पहले उन्होंने पेपर के ऊपर टैक्स लगा दिया डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से, अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इतनी हाई कर दी हैं कि लिटरली दे आर ट्राइंग टू किल द एंटायर इंडस्ट्री। बट स्टिल absolutely. जो स्टोरीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो एक जगह पर, लेकिन जो लोग हैं, I still see and I still receive a lot of new authors। They come to me and they say, okay, I have a book, I want to get published, so how do we get started? So when I get these kind of questions, I really see hope, and that is only possible because of authors like you and others who actually took the initiative। So a great effort, and a great round of applause for you for actually taking Thank out you. the time and thinking about these creative things, because I kind of get to talk to many people, but whenever I get a text from you, and I always know, okay, something else is brewing up, here comes another new idea। So thank you so much for And then thank you, Umar. Before you thank me, I should thank you and your entire team for actually starting this initiative, Dastan. I remember when you first floated this idea and you also visited Karachi in 2017, or I think. तो आपने कहा yeah, था कि आपने पूरा एक प्रोसेस बताया था कि in the next 5 years you're going to do this, and I think most of that plan has been put into action. yeah, some, but we were able to do that। बाकी challenges Okay. off and on आते रहते हैं। सॉरी, I'm sorry, I'm going to cut you off. मैंने कुछ देर पहले दो ऑथर्स के नाम लिए थे। आई एम जस्ट मेंशनिंग कि मैंने उनके नाम, शायद मुझसे गलती हो गई है, आई एम रियली सॉरी। एक है उस्मान टी मलिक, जिनकी Yes, किताब आई थी मिडनाइट डोरवेज। ही इज एन एक्सीलेंट राइटर और मैंने इनकी किताब का रिव्यू भी किया था। एंड द सेकंड इज फराज तलत, जिन्होंने yes, 74 के नाम से साइंस फिक्शन लिखी थी। उसके अलावा है सिद्रा एफ शेख, जिन्होंने द लाइट ब्लू जंपर के नाम से लिखी थी। सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड टू सी कि ये वो ऑथर्स हैं जिन्होंने एक तरह से फाउंडेशन रखी है फॉर साइंस फिक्शन राइटिंग इन पाकिस्तान। exactly। फराज से तो I think I've also met him personally as well। उस्मान के साथ been connected off and on, but haven't met him। I think वो पाकिस्तान में शायद नहीं होता, he's abroad। उनकी अपनी कोई day या job है, I guess। So we do have one question। हमजा हमारे साथ हैं। He's saying, Umru, your stories were amazing, but sadly they never highlighted the author of those books। Yes, truly, I agree to that। Umar, if you would like to comment on that। stories were amazing, but sadly they never highlighted the authors of those books. Okay, so ये उमर मैं हूँ या उमर आप हैं, किससे मुखातिब?
वो उम्र यार स्टोरीज की बात करें, द वन दैट वी अच्छा यूज्ड उम्र यार सॉरी, ओ अच्छा उम्र यार सॉरी, ओ ओ मैं समझा टाइपो हो गया है। ओ आई एम सॉरी। तो आई थिंक पता है इसमें हमजा मसला ये है कि मतलब मसला भी है, एक कर्ज भी है और एक ब्लेसिंग भी है हमारे लिए और आपके लिए कि जो चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई हैं तो इसका मतलब है देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कि अभी उनको हाईलाइट होना बाकी है। और कैसे होगा? सोशल मीडिया के थ्रू होगा, ब्लॉग्स के थ्रू होगा, पब्लिशिंग के थ्रू होगा, जिस तरह दास्तान किताबें पब्लिश करता है। सो आई थिंक उमर हम जो है वो एक कुछ कर सकते हैं इसके बारे में कि उम्र यार की जो कहानियां हैं उनको एक कोई करेक्टर प्रोफाइल के तौर पे हम कोई किताब ई बुक के तौर पे ले आएं कि भाई उसमें कौन कौन से करेक्टर्स थे, या उम्र यार या बाकी जो इस तरह की साइंस फिक्शन और फैंटेसी टेल्स हैं उनके ऑथर्स कौन हैं, उनकी एक प्री प्रोफाइल बना दी, some sort of an anthology, but more of a reference material for readers and authors alike. Maybe we can do something like that. Yeah, definitely. Let me brainstorm on that, and probably we can come up with something interesting. So, Thank you, Hamza, coming back, for the yeah. जी So coming sorry. back to the player AI. So, इसके अंदर I would like to know a little bit more about कि इसके अंदर total characters कौन कौन से हैं जो readers should really be looking forward to reading about. So, if you would like to highlight any particular characters कि इसको आपने जरूर पढ़ना है, इसका twist है ना. आई थिंक इसमें हर हर कहानी का एक प्रोटैगनिस्ट होता है और Yeah. एक एंटैगनिस्ट होता है। तो प्लेयर एआई का जो प्रोटैगनिस्ट है वो ऑब्वियसली वो वो एंड्रॉयड है जो कि हमारे कैप्टन का रोल प्ले कर रहा है। और साथ में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो दो हैं जिनके मैं नाम लेना चाहता हूँ। एक तो हैं पीसीए के चीफ और दूसरे हैं, उनका नाम है शोएब। ही इज द वन हु इज एक्चुअली हैंडलिंग द एंड्रॉयड। वो पूरा हैंडसेट पहन के और ग्लव्स पहन के वॉट एवर जो है वो वॉट एवर द एंड्रॉयड इज डूइंग वो शोएब देख रहा है। मतलब ही इज द एंड्रॉयड्स आईज एंड ईयर्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और एवरीथिंग इज लाइव, एवरीथिंग इज इन रियल टाइम, तो बहुत सारे जो हैं वो मसले भी हुए हैं, बहुत सारे हिकअप्स भी हुए हैं। तो वो जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो जब मैं एडिट भी कर रहा था ना कहानी, तो मैं बार बार उस पर हंसता था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने उसको इस तरह से रख के लिखा है कि अगर एक हैंडीकैप में होगा तो क्या क्या मसले होंगे। कि मतलब फॉर इंस्टेंस जो हमारा एंड्रॉयड है उस बाय द वे वो यासिर एहसन नाम है उस स्किपर का, जो हमारा स्किपर है जो कि बीमार हो गया, उसकी जगह पे एंड्रॉयड है। तो वो पिच पे खड़ा हुआ है यासिर एहसन का रेप्लिका, और वो अपनी नाक में उंगली डाल रहा है। क्यों? क्योंकि शोएब भाई जो है उनको नाक में उंगली हो गई थी। तो पीसी चीफ ने कहा, क्या हो गया, पागल पागल हो गई, ये सब लाइव जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो इस तरह से जो उनकी जो कन्वर्सेशन है, ये मतलब पीसीए चीफ आखिर में कह रहा था मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं किन लोगों के साथ हूँ, ना वो सही काम कर रहा है ना ये इसको हैंडल कर रहा है। फिर साथ में जो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि जो एंड्रॉयड है उसकी अपनी मशीन लर्निंग चल रही है, वो खुद सवालात पूछ रहा है जिसपे लोग कह रहे हैं ये किस तरह से इसके पास सवालात आ रहे हैं, और वो उससे 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 उनको डर भी लग रहा है कि ये कहीं इतना अच्छा ना खेले कि हम पे इल्जाम लग जाए मैच फिक्सिंग का। तो वो सारी चीजें जो है वो उन लोगों को टैकल करनी होती हैं। इंटरेस्टिंग। सो अगेन जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं उसमें एक चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट रहती है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच रहता है। सो इसका भी क्लाइमेक्स कहीं पाकिस्तान इंडिया पे ही आया था या ये ऑस्ट्रेलिया पे था? इसमें 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 मैंने बिग थ्री को रखा है, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे भी है इसमें। इसमें और भी है, मैं ज्यादा अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा वरना पढ़ने वाले जो है ना पहले से उनके जहन में एक वो बन जाएगा, कुछ एक स्केलेटन मटेरियल टाइप बन जाएगा। सो इसको मैंने बहुत रेलेवेंट रखा है कि हम क्या चाहते हैं अपनी टीम से, क्या हो सकता है और इवेंचुअली क्या हुआ है। सो सही सो सही। सो आई थिंक, तो आई थिंक अगर हम इसकी थीम्स की बात करें, सो द स्टोरी कवर्स थीम्स ऑफ leadership, sacrifice, and how the machine human interaction can eventually evolve sports in the future. हो सकता है हो सकता है आज से 50 साल के बाद हमारी टीम जाए और वो हमारी टीम, हमारे सारे खिलाड़ी आराम से किसी एयर कंडीशन कमरे में लेटे हुए हों, उनके नॉट्स वगैरह लगे हुए हों, हेलमेट पहना हुआ हो और उनके रेप्लिकास जो है वो गेम खेल रहे हों।
या कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। सो अभी तो मैं देख रहा था लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर इवॉल्विंग, जैसे कुछ कॉन्फ्रेंसेस में मैंने देखा उसमें होलोग्राम के उन्होंने पूरे वो बॉक्सेस से बनाए थे, सो यू जस्ट स्टैंड इन या योर ओन हाउस या ऑन स्टूडियो और वो आपका पूरा 3D होलोग्राम वहां पर आ रहा होता है एंड देन इट डज व्हाटएवर यू से। आई आल्सो सॉ सम ऑफ द इनोवेशंस बाय आई थिंक जापान, जहां पर उन्होंने डिसेबल्ड लोगों को वही इसी तरह हेडसेट्स वगैरह दे दिए एंड देन दे वर कंट्रोलिंग रोबोट्स एंड एक्टिंग एज सर्वर्स इन certain bars and cafes. So quite interesting experiments going on around the world. इसमें एक जो चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग जब हम एआई की बात करते हैं या मशीन्स की ह्यूमन इंटरेक्शंस के साथ बात करते हैं, सो मे बी इन डिस्टेंट फ्यूचर there might be a conversation about machine rights. जैसे human rights चल रहे हैं, so probably there could be an interesting conversation going around कि जी machine के क्या rights होते हैं. They are also living beings. जैसे एक वो पहले animals, फिर plants और फिर humans, और इनके around काफी conversations off and on चलती रहती हैं कि जी नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. So I think one interesting aspect which I forecast or I foresee in the upcoming stories probably or movies would be somewhere centered around machine rights. There were a couple of movies that I have seen. They kind of touched that subject at some point, लेकिन किसी ने वो बड़ा डिटेल्ड में उस पर्टिकुलर चीज को लेकर इस तरह नहीं कवर किया. सो आई थिंक मे बी साइंस फिक्शन का जो अगला एवोल्यूशन होगा प्रॉब्ली समवेयर अराउंड दैट हो सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स तक तो वो चले गए हैं, अब उसके आगे मल्टीवर्स भी कितने अब वो और उससे आगे जाएंगे. पहले तो हाँ यूनिवर्स के अंदर था कि जी ये यूनिवर्स है, फिर वो खत्म हो गया, उसने सारी चीजें कर ली तो मल्टीवर्स में चला गया, वो भी सारी चीजें कंप्लीट ही होगी, एक तरह से सैचुरेट होगी. इससे आगे तो आई थिंक द ओनली thing or the only room that's left is probably somewhere around a fight of rights. That could be an या interesting thing. So player AI इनफैक्ट का आप हम सॉरी yeah. इनफैक्ट आपने एक अच्छी बात बताई कि मे बी देयर कुड बी अ कन्वर्सेशन ऑन मशीन राइट्स, क्योंकि कल ही खबर आई है कि साउथ कोरिया में एक एंड्रॉयड है, ही कमिटेड इट और ही आई डोंट नो इट कमिटेड सुसाइड, क्योंकि वो ओवरवर्क हो गया था और वो स्ट्रेस में उसने कहा भाई खत्म करो, जान मिट्टी मिट्टी पाओ. तो अगर सच में अगर फिर अगर कोई लॉयर्स मूवमेंट होती है एंड्रॉइड्स की, वो तो सारे फैसल बंद करके कराची में कोई होते कि हमारे भाई को तुमने मरवा दिया और उसने दुनिया में जो है वो तो अच्छा. अब ये भी है ना कि अगर इस तरह के एंड्रॉइड्स कहीं धरना देते हैं, जलसा करते हैं, तो उनको किससे टैकल करें. हो सकता है उनके हाँ पास लेजर बीम हो, वो उड़ सकें, वो बाकी जो स्काई नेट की तरह आपके डिफेंस सिस्टम को हैक कर लें. आई मीन हाँ the possibilities are limitless. exactly. So moving forward, Umar, do you think we have a player AI volume 2 coming up anywhere in near future or distant future? I have plans of maybe it. Yeah, I wouldn't consider it as a second volume or a sequel to Player AI. I am contemplating on bringing out a more comprehensive novel type of a manuscript of Player AI, कि जिसमें एक थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाए, क्योंकि ये तो मैंने एक बहुत ही, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपने देखी हुई है. दिस इज द कवर ऑफ प्लेयर एआई. इट्स अ वेरी शॉर्ट बुक, इसको आप तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में ख़त्म कर सकते हैं. तो अगर हम कह सकते हैं एक बेसिकली एक नॉवलेट है which is shorter than a novel. So I'm thinking of writing a novel on the same concept, keeping the same characters, और उसको थोड़ा सा और रिफाइन करके उसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज डाल के उसमें और मशीन ह्यूमन इंटरेक्शन को और ट्विस्ट एंड टर्न्स देने के लिए जो है वो मेरा प्लान है. कब ये होता है आई हैव नो आइडिया, क्योंकि द थिंग्स आर इन मोशन. लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता है कि मतलब एक क्रिएटिव राइटर के लिए कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता. वो रात के 3 बजे भी ख्याल आ जाता है तो मैं अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने लगता हूँ, तो पैर को 3 बजे भी कुछ आ जाता है, मतलब उसका कोई टाइम नहीं है. तो वो एज इन वैन जब ख्याल आता है, एंड आई नेवर फोर्स माई सेल्फ टू राइट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव राइटिंग. मेरा एक हमारे एक कोलीग हैं, मुझसे कहने लगे कि मैं एक राइटर्स ब्लॉक में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो. मैंने कहा बताएं जरा, एक्सप्लेन करें. कहने लगे वो जो कहानी है ना उसमें कैरेक्टर को मैं आगे प्रोलॉन्ग नहीं मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ पा रहा. तो मैंने कहा डोंट फ्रेट ओवर द स्टोरी, लेट योर कैरेक्टर टेल यू व्हाट टू डू. तो कहने लगे ये कैसे होगा. मैंने कहा आप रहने दें, अपने कैरेक्टर से बात करेंगे, बिकॉज अ कैरेक्टर
is a part of our mind, but it is also a figment of our imagination. तो मैं उसको अपना extended thought समझ, क्योंकि कभी कभार characters मुझसे बात करते हैं कि हमें इस तरह से लिखो, क्योंकि obviously वो intuition और creative thinking और subconscious level पे जब मैं काम करता हूँ तो मैं उसको एक अलग perspective से देखता हूँ. अच्छा उमर, एक और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जिसको हमने अभी तक टच नहीं किया, दैट वाज अ लिटिल बिट इन द इंटरसेक्शन ऑफ राइटिंग स्टोरीज एंड naturally versus writing stories artificially using artificial intelligence. So I've seen that there are a lot of tools and there's also a debate going around कि अच्छा आप जो ये पोइट्री लिखते हैं, are these even your own thoughts? ये तो एक AI भी बड़ी इंटरेस्टिंग पोइट्री लिख सकता है या AI भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिख सकता है. And I have also seen some people actually running boot camps with students and telling them to use AI to write stories. So how do you see this thing going forward, and probably how would it affect our industry? I think AI और बाकी जो हमारे सॉफ्टवेयर है, मेटा है, कोपायलट है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, we can use them only to the extent of seeking inspiration or to asking that AI कि हमने जो लिखा है उसका स्ट्रक्चर या ग्रामर सही है. Creative thought process should come from us, the humans. क्योंकि एक AI जितना अच्छा क्रिएटिव कुछ लिख लेना, उसके अंदर वो इमोशंस मैं समझता हूँ अभी तक मिसिंग है, या आप पढ़ के बता सकते हैं हाँ ये AI ने लिखा है. दूसरा ये कि रनिंग बूट कैंप्स टू फैसिलिटेट एस्पायरिंग ऑथर्स टू राइट क्रिएटिव राइटिंग, आई थिंक वहाँ पर भी उनको ये चाहिए कि वो उन राइटर्स को बताएं कि आपके इमोशंस और आपका थॉट प्रोसेस शुड ऑलवेज ओवरशैडो व्हाटएवर द चैट जो भी AI है वो आपको बता रहा है. इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आपके सामने दो प्लेट रखी जाए, एक में चिकन नगेट्स हैं जो कि फ्रोजन थे और उनको तला गया है, और दूसरे प्लेट में चिकन नगेट्स स्क्रैच से एक ह्यूमन ने बनाए हैं. तो आई थिंक आपको टेस्ट में फर्क पता चल जाएगा फ्रोजन में और जो तो इसी तरह अगर एक राइटर के सामने या रीडर के सामने, जो कि एविड रीडर के सामने दो मैन्युस्क्रिप्ट रखे जाएं, एक AI ने लिखा है, एक ह्यूमन ने लिखा है, तो कहीं ना कहीं AI कोई ऐसा लूप होल छोड़ देगा लामहला कि वो आप कहेंगे नहीं यार इसमें इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा. एग्जैक्टली exactly. और मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है AI को लेकर वो यही है कि AI एक्चुअली फॉलोज अ सर्टेन स्क्रिप्ट और अ फॉर्मेट. सो आप उसे कुछ भी चीज दें तो इट स्टार्ट्स विद अ सर्टेन लाइन, इट गोज टू वो जो एक स्ट्रक्चर होता है ना कि अच्छा पहले ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, वो उसी तरह ही चल रहा होता है. एंड आफ्टर अ व्हाइल यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि यार ये जो है ये किसी ओरिजिनल बंदे ने लिखा है, कहीं AI जनरेटेड है. एंड अनदर थिंग दैट आई हैव सीन from AI generated content is there is not actual enough thoughts. वो एक ही पॉइंट को रीफ्रेस करके मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लगा लगा के आपको वापस दे रहा होता है. सो if you are a writer yourself and you are kind of like talking to an AI, there comes a point where you get really frustrated and then you are like यार ये पता नहीं क्या सीख रहा है, इससे बेहतर है तो जितना टाइम मैंने इसके ऊपर लगाया I could have written that myself. तो ये चीज़ें जो है ऑफ एंड ऑन आई थिंक हमारे पास चलती रहती हैं. सो हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी कन्वर्सेशन रही. आज जो हमने डिस्कशन की AI प्लेयर AI की बुक के बारे में, प्लेयर AI उमर इफ्तिखार ने लिखी. दिस इज़ प्रॉब्ली हिज फिफ्थ बुक. इसके ऊपर हमने बात की कि किस तरह से हमारे पास एक क्रिकेट टीम है जिसको AI के थ्रू हमने पोर्ट्रे किया हुआ है, और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट जो था वो भी उमर भाई ने हमारे साथ शेयर किया. सो थैंक यू सो मच उमर फॉर शेयरिंग and being with us and sharing these interesting thoughts. Any closing comments or remarks that you would like to add for the viewers or for the people who will view this recording later on? I'm sorry मेरा internet connection disrupt हो गया था. Thank you Umar for having me here on this online book launch of Clear AI. My closing remarks will be number one, write from your heart. Number two, use AI but don't become a slave of it. कि उससे आप इंस्पिरेशन लें, उससे आप मुख्तलिफ alternate solutions मांगे. फर्स्ट करें आपने अगर एक आर्टिकल लिखा है और आपने उसकी हेडिंग समझ में नहीं आ रही, तो आस्क AI कि आप इसकी 10 पॉसिबल हेडिंग्स बताएं जो कि रेलेवेंट हो, एंड देन यूज योर हेडिंग्स
by combining your thoughts और वो जो options आपको मिले. And number three, don't be afraid of AI, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि AI आएगा और इंसान खत्म हो जाएंगे और वो shadow कर जाएंगे. I think इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है और कोई नहीं हो सकता. तो आई थिंक इवेंचुअली एआई खुद कहेगा ये हमें कहाँ पैदा होगा, जैसे कल ही जो एंड्रॉयड जो है वो उसने खुदकुशी की है. सो आई थिंक वी शुड एम्ब्रेस चेंज, but without having it overpower our senses, emotions, and feelings. And AI is the future, but it is us who should control the extent of governance that the AI should have on society. Okay. Thank you so much, Umar, for your closing thoughts. So, thank you all the viewers who were with us, and also for those who will stream this later on. Dastan is a book publishing platform, and we help authors to publish their work. Player AI was one of an emerging piece of that we publish, and we are really proud of it. You can see in you can also order the book through the comment section. आप comment section में जाएं, वहाँ पर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लें. देयर इज अ लिंक ऑफ द बुक वेयर यू कैन गो एंड प्लेस एन ऑर्डर. इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, इसकी हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल हैं. For people in Pakistan, you can buy directly from here. From people outside Pakistan, you can also buy ebooks by paying via PayPal on our website. Or if you would prefer to buy on Amazon, uska link bhi you can request with us. Thank you so much. Have a nice day. Looking forward to another interesting uh, book from Umar. Have a nice day. Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz.